Okay, so very good afternoon to all of you. And today we are going to start our topic of sequence and series. Right. So what is a sequence? Sequence is if some numbers are generated using certain logic, we say it is a sequence. So the simplest logic of generating a number series could be, let us say there is a number 2 and you are adding 3 to this number, so it becomes 5, let us say, and you're adding another 3 to this number, it becomes 8, you add another 3 number, it becomes 11, so on and so forth. So basically what you are doing is you are adding 3 to a previous number and you're generating a new number. So the way you generate numbers by following any logic, it could be any logic. For example, you started with 2 and you added, let us say, 1 ka square, so it becomes 3, right? From this you added, let us say, 2 ka square, so it becomes 7. From this, let us say you added 3 ka square, it becomes 16. So once again you keep on generating a sequence, right? When you generate some numbers using any possible logic, you call it as a sequence. And when you find the sum of these sequences, let's say, you end up calling it as a series. So basically summation of a sequence becomes a series. So nothing much, but we generally study sequence and series. So there are certain standard series that we have, right? And then there can be different kinds of series that can be generated. So we are going to study both, general standardized series, and also if some non-standard series are obtained, how do we go about and handle that situation? So that is what we are going to study in today's class. So first thing is we generate a standard series. One of the most standard series is when we have, let us say, a number like a, and you add something, let's say d on this number. In another, you add another d, so it becomes a plus d plus d, so it becomes 2d. So if you take another number, it becomes a plus another d, it becomes 3d, and so on and so forth. You see, logically, in the first term, the coefficient of d was 0. So if you take off nth term, the coefficient will become n minus 1d. Now, any series which is generated by adding a fixed quantity to the preceding quantity is known as arithmetic प्रोग्रेशन. समझ में आ रहा है? तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी के नाम से जानते हैं. सो एनी सीरीज विच इज जनरेटेड बाय एडिंग अ फिक्स्ड क्वांटिटी टू द प्रीसीडिंग क्वांटिटी इज नोन एज एपी. दिस इज ऑलवेज नोन एज द फर्स्ट टर्म, right? And this is always known as the nth term. Nth term. So nth term is always represented as tn. So nth term is always represented as tn. Say for example, it becomes a plus n minus 1 into d. So this is an nth term. So how would you find out first term, second term, third term? You would find first term by replacing n by 1. So if you replace n by 1, it becomes a plus 0d, which becomes a. If you want to find out the second term, you take a plus 2 minus 1 into d. So this becomes a plus d. If you take third term, all you have to do is a plus 3 minus 1 into d, which becomes a plus 2d. So you see, logically, this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is fourth, and so on and so nth term. समझ में आ रही बात? So a series which is generated by adding a fixed quantity to the preceding quantity becomes your arithmetic progression. And the standard terminology is a is first term, d here is known as common difference. Why it is known as common difference, I'll just tell you. Common difference का मतलब है कि if you take any two subsequent terms, the difference would be d. For example, if you take this term and this term, that means if you take t3 minus t2, so third term minus the second term will give you d. So if you take any two consecutive terms, right, the common difference would be same, and therefore it is known as d. So that means if a series is given to us, how do you really identify whether the series is in arithmetic progression or not? So the standard test is you take two pairs of consecutive terms, any two pair, and if the difference is constant,
then you can always say that my series is in arithmetic progression, or we may say it is a AP series. We understand something like this? Okay. So we have first term, we have nth term, and we know each terms. So A is always first term, N is number of terms, D is the common difference. Then the next idea in this is, if you have two series which is in AP and you find out a sum or a difference of the two series, once again it will be in AP. For example, let us say I have one of the series, let us say AP1, which says, let's say I start a series with 3 and I add 2, this it becomes 5, I add another 2, it becomes 7, I add another 2, it becomes 9, I add another 2, it becomes 11, and so on and so forth, right? This is, let us say this is my second series. I start with 1 and I add 1 here, so it becomes 2, I add another 1 here, 3, 4, 5. This is also in AP because common differences. Now if you take the sum, if you take the sum of these two series, what do you see? The sum becomes 4, the sum becomes 7, the sum becomes 10, the sum becomes 13, the sum becomes 14. You see, this also is a AP. And the common difference is the common difference of the first one plus the common difference of the second one. इसका common difference, इसका D1 कितना था? 2. इसका D1 कितना था? 1. तो जब हमने ऐड किया तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी AP में ही बनेगी, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो पहले और दूसरे सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा. उसी तरीके से इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू सीरीज, राइट, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू सीरीज, तो यहाँ माइनस में ये इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे, ये वाली माइनस करेंगे, मान लो इस सीरीज को माइनस कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6. ये भी हमारी AP ही बनेगी जिसका की कॉमन डिफरेंस बनेगा D1 minus D2. So that means if there are two series in AP, you add or subtract these two series, you end up becoming a new AP whose common difference would be the sum or the difference of the previous two arithmetic progressions. ये यहाँ तक बात समझ में आती है? So the next idea is to find out the sum of this arithmetic progression. मतलब ये AP है, अगर हमें इसका सम निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? Let us just take some random example. We have already taken, let us say, this series. मैं इसी को ले लेता हूँ. मान लेते हैं मेरे पास ये arithmetic progression है, या 3, 5, 7, 9, 11, 5 हो गई, मान लेते हैं. कितना ऐड किया था हमने? 2, 2 ना, 13, 15. Say for example, this is my AP, right? I want to find out the sum of these terms. How do I find out the sum of these terms? Now, if you observe the terms 3 and 15 का sum कितना होता है? 18. So if it is 18, can I write this value as 9 and can I write this value as 9? Because 9 plus 9 is 18. सर, हाँ जी, सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये चल रहा है प्रोग्रेशंस. अभी ये फिर से दबाना पड़ेगा क्या इसको? ऑफ तो नहीं हो जाएगा? मैंने अभी ऑन दबाया तो था, एक बार दबाया था. लाइट आ गई? नहीं तो अभी वो फेस चेंज कर रहे थे तो नहीं हो रही थी. ऊपर हम कोशिश कर रहे थे तो नहीं, रजनीश ने करी थी, उसको आती नहीं क्या? हो गया, हो गया. क्या हुआ? अजीब सी रिंग तो. Okay, so now
So we know, see, if you take the first and the last term, the sum is 18. So sum of two terms is 18. Can I safely say first term and last term को 9 लिख दूं एक बार के लिए? Now, if I look at second and the second last term, 5 plus 13, once again, it becomes 18. Can I not write it as 9? If you look at 7 and 11, once again, it is 18. Can I not write it 9? And incidentally, this becomes also 9. So if you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, because there are 7 terms, so the sum basically can be taken as 7 into 9. And how did you really get this 9? This is the number of terms 7, that it was the sum of 3 and 15 basically, which is 7 into, if I were to say, first term plus last term. And what is n? N is number of terms. So if I take number of terms into first term plus last term, I get the sum of n terms. Now, if you were to say कि चलो इसमें तो सर आपका बीच में 9 आ गया, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तो मान लेते हैं हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती 1 2, मान लो ये ले लेते हैं, हम यहां तक ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको ऐड करना है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 17। 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5। इन दोनों का भी सम कितना बन जाएगा? 17। इसका आधा कितना हो जाएगा? 8.5, यानी 8.5 इंटू, ये कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 18 बेसिकली डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना? डिवाइड बाय 2। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हो गया a and l. But what is l? L is nth term, which is nothing but a plus n minus 1 into d. अगर हम जनरल की बात करें तो यही होता है ना, मेरा लास्ट टर्म तो यही होता है। तो एक तो सम क्या हो गया? एवरेज, और इसका मतलब फॉर्मूला हो गया मेरा n/2 a प्लस लास्ट टर्म की जगह अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला आपको किताब में लिखा हुआ मिलता है। सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is given as n/2 into 2a plus n minus 1 into d. That is the formula you keep on studying. But what is this basically? It is nothing but finding out the average of the first and the last term and multiplying by the number of terms. So the another learning that we get from this is that the sum of the two terms relative to its position in the first and the last places will always be equal. That means if you add the first term and the last term, the sum of these two terms will always be same as the second term plus second last term, will always be same as third and third last term, will always be same as fourth and fourth last term. समझ में आ रहा है? यानी कि जो हमारी रिलेटिव पोजीशन है फर्स्ट और लास्ट की, अगर वो सेम होएगी तो उसका जो सम होगा वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट के बराबर आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आती है? तो ये इसकी एक लर्निंग है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल बी यूजफुल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द सम ऑल फॉर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एवरेज इनटू n, या फिर ये जो मैंने लॉजिक आपको समझाया है ये। बोले यहां तक बात समझ में आती है हमें? Then sometimes we are required to choose terms. जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं let the age of Ram be x, 5 years hence, हम उसको x plus 5 इस टाइप से इक्वेशंस बनाते हैं। Sometimes we want to choose, let us say 5 terms of AP, 6 terms of AP, 3 terms of AP. So what is the best way of choosing those terms? Now we know a general sequence is nothing but a, मान लेते हैं एक टर्म है, दूसरा टर्म a plus d बन जाएगा, तीसरा टर्म a plus 2d बन जाएगा, और चौथा टर्म मान लेते हैं a plus 3d बन जाएगा। Say for example, let us say now if I were to choose 4 terms मान लेते हैं, और if I were to choose 3 terms मान लेते हैं, तो 3 terms में ये चूज कर सकता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा ये, पांचवा I can always choose a plus 4d, right? But it does not really make much sense for me to choose in this fashion. So what is the best way of choosing 3 terms, for example? So the best way of choosing 3 terms is a minus d, a, and a plus d.
So whenever you choose three terms, it is expected that you choose something like this. Why? Because when you find out the sum of three terms, you see d and d gets cancelled and you're only remaining with one variable. So it makes sense that you choose something like this. Similarly, if you have to choose five terms, then the way you would choose is a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 2d, and that is how you would end up choosing. Shivam, you may be having a poor connectivity because everybody else looks fine. शिवम अपना चेक कर लो. और तो किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? No, sir. हाँ शिवम, चेक योर कनेक्शन. So it makes sense that I choose, you know, 5 terms like this. So whenever you are choosing odd number of terms, yani 3 term, 5 term, 7 term, you try to choose values in such a way that the common difference is d, and you take from the minus side and you take from the plus side also. But whenever you have to choose even number of terms, right? Now if I were to choose even number of terms, then it is not possible for me to go in this fashion. So how do I really go into this? What is the best way of doing it? If I have to choose 4 terms, I would choose a minus 3d, a minus d, a plus d, and a plus 3d. You see, why do I choose something like this? In this case, if you see carefully, the common difference is 2d, but if I were to choose 4 terms like this, and if I were to add these 4 terms, all the d's would have got cancelled and I would end up getting a 4a, thereby helping me in reducing the variables. So whenever you are choosing odd number of terms, odd number, तो हमारा जो common difference है वो d है. And when you are choosing even number of terms, तो अगर मान लो एक और चूज करना होता तो हम क्या चूज करते? a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, and a plus 5d. कितना हो गया? 3 और 3 6. तो यहाँ 4 नंबर्स 6 नंबर्स. तो इस केस में जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? d. इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2d. राइट. सो इफ यू हैव दिस इन माइंड, sometimes it will help you in choosing the terms of AP. ठीक है. Then there is something known as an arithmetic mean. जैसे कि हम arithmetic progression पढ़ते हैं, वैसे ही एक arithmetic mean होता है. Of course, हमने कई बार इसको पढ़ा हुआ है. Arithmetic mean is also known as average. तो arithmetic mean क्या होता है? Arithmetic mean होता है sum of the values divided by number of values. ठीक है. तो मान लेते हैं मेरे पास 2 वैल्यू है a और b. ठीक है. अगर इसके बीच में मैं एक और अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इसका a प्लस बी बाई 2. समझ में आ रहा है? तो a plus b by 2, this will always be in AP. So sometimes they ask if you want to introduce certain means between the given 2 terms. So that is how you can introduce certain means. सर इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ सर? अर्थमेटिक मीन का मतलब इक्वेशन में किस तरह, मतलब क्वेश्चन में किस तरह से पूछ सकता है सर? ये पूछ सकता है कि मान लो आपने 4 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, तो 4th टर्म बता दो. उस टाइप से पूछा जा सकता है. या फिर सिंपली बस, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये फॉर्म करता है पार्ट ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को पढ़ाने का बेसिस, जिसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है. अर्थमेटिक मीन इज एज गुड एज एन एवरेज दैट वी हैव बीन स्टडीइंग. ओके सर, मतलब दोनों टर्म्स का एवरेज, फर्स्ट और लास्ट टर्म. हाँ, 2 ही टर्म्स हैं. तो अगर बीच मान लो हमारे पास 2 टर्म है, मान लेते हैं 3 और 4. ठीक है. मान लो हम इसको, अब ये 2 में तो एपी बनेगी नहीं, कम से कम 3 टर्म चाहिए. तो अगर इसका एवरेज ले लें, इसका एवरेज क्या है? 7.5. 7 का 3.5 ना. तो अब ये जो 3.5 है ना, अब ये तीनों टर्म्स जो बनेंगी ना, ये एपी में आ जाएंगी. ओके सर. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में तुम एक टर्म डाल दो तो वो भी एपी में आ जाए. इन दोनों का मीन ले लो, इन दोनों का मीन ले लो, यहाँ डाल दोगे तो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में बन जाएगी. ओके सर, गॉट इट. ठीक है. ओके. अब इसके अंदर एग्जांपल्स देखोगे तो पूछेगा 17th टर्म, 18th टर्म पूछ लेगा, nth टर्म पूछ लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज, देन ऑल द क्वेश्चंस कैन बी हैंडल्ड फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आ रही बात समझ में यहाँ तक?
ठीक है, इसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी अच्छा बाय द वे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम एन टर्म्स तक सम निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो सीरीज, चूंकि हम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो सीरीज बढ़ती जाएगी, तो इनफाइनाइट होके कहां तक चली जाएगी? प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन आप ये भी कह सकते हो सर हमने जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब ए 2 प्लस -3 कर दिया तो -1 हो जाएगा, अगले में -3 और ऐड कर दिया -4 हो जाएगा, अगले में -3 और ऐड कर दिया -7 हो जाएगा, तो कहां चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, हाँ कई बार ये क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है कि एक सीरीज दे दी गई है, शुरू में बहुत स्टार्टिंग वैल्यू बहुत बड़ी है और वो डिक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी जाएगी तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन वो सीरीज का कई बार मैक्सिमम सम पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ अ गिवन सीरीज? ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा, बट मैं एक रैंडमली क्वेश्चन बना देता हूं समझाने के लिए। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई सीरीज है स्टार्टिंग में, लेट अस से 235, एंड जो नेक्स्ट टर्म है मान लेते हैं वो बन रही है 235 मान लेते हैं -2। समझ में आ रहा है? फिर अगले में क्या बन रहा है? 235 माइनस में 4, 235 माइनस में 6, मतलब ये जनरल सीरीज है। तो बेसिकली जो मेरी सीरीज है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये मेरा nth टर्म है। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गया। सेकेंड टर्म में बेसिकली क्या हो रहा है? व्हाट यू आर एडिंग इज -2। तो फर्स्ट टर्म बनेगा ये 235, सेकेंड टर्म बनेगा 235 माइनस 1 प्लस 1 इंटू -2, अगला बनेगा 235 प्लस 2 इंटू -2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मान लो ये जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जीरो होएगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होएगी, हो सकता है डेसिमल में आ जाए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होएगी? जब तक ये टर्म्स जीरो तक अप्रोक्सीमेटली नहीं पहुंच जाती, क्योंकि उसके बाद ये वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी और इस सीरीज की वैल्यू डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो हमें बेसिकली ये ढूंढना है कि कौन सा जो nth टर्म है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो tn इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस n माइनस 1, यानी 235 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। वी आर लुकिंग दिस वैल्यू टू बी approximately 0. So what we are searching essentially is -2 n minus 1 into -235. So this cancels, so this divided by 2. So 1 2 5 नहीं 7.5। समझ में आ रहा है? तो n इज इक्वल टू 127.5 प्लस 1, यानी n की वैल्यू बन जाएगी 128.5, यानी 128.5 वैल्यू पे जीरो बन रहा है। इसका मतलब है या तो 128 टर्म्स होंगी या 129। ये जो 129th टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, यानी n इज इक्वल टू 128, यानी कि t समेशन t 128 निकालना है। इस समेशन का मतलब भी समझाता हूं क्या होता है। इसका मतलब ये है t1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म सो ऑन टिल 128th टर्म। समझ में आ रहा है? वहां तक ये सम जो सीरीज है वो क्या होएगी? बढ़ती जाएगी, और उसके बाद जो है सीरीज वो घटती जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे कि t 128 का टर्म वैल्यू क्या बनेगी? t 128 इज इक्वल टू a प्लस 235 प्लस n माइनस 1, कितना बन जाएगा? 127 इंटू -2, तो ये बन जाएगा 235 माइनस 234। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां तक ये सीरीज क्या बनेगी? यानी 238th टर्म की वैल्यू क्या आ रही है? 1। समझ में आ रहा है? अगर 129th टर्म ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? -1। अब अगर हमने 129th टर्म ले ली तो ओवरऑल सीरीज की जो भी सम बनेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि -1 हो गया। तो हम कहां तक सम निकालेंगे? 128 तक। अगर इस मैक्सिमम सम निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? S28 निकालना पड़ेगा। S1 n/2 यानी 128/2 इंटू 2a
n minus 1 यानी 127 into common difference is minus 2. So this is the maximum sum that you will get for अच्छा, तो हमने फिर यहाँ गलती कर दी है। यहाँ एक 2 1 जा 1 15, ये 235 ही था ना, तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे गलत सर 1 1 ये- आएगा ये- सर, 117 आएगा। ये ठीक है। ठीक है, which eventually would lead to ठीक है। सो बस वो सर ये सबमिशन के फॉर्मूले से हमने निकाल दिया था, सम आ जाएगा, तो ये हमने ये टी वाला क्या क्यों किया हुआ है, मतलब ये वाला, हाँ जी ये सर, तो मैं ये मैं समझा रहा था कि जो आखिरी पॉजिटिव टर्म होगी ना, वो 118वीं पॉजिटिव टर्म होगी। ओके सर। अब अगर हम 119वीं टर्म निकालेंगे तो -1 आ जाएगी, क्योंकि -2 हो रही है। अच्छा मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि ये सीरीज स्टार्टिंग में 235 थी, हाँ जी सर, 233 हो गई, 231 होगी, ऐसे जाते जाते कहाँ हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कौन सी टर्म? 118वीं टर्म 1 हो जाएगी, फिर 119वीं टर्म -2 हो जाए, -1 हो जाएगी, और 120वीं टर्म -3 हो जाएगी। तो दिस इज द लास्ट। ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए समझाने के लिए मैंने बताया था कि ये सीरीज हम वहीं तक ऐड करेंगे जहां तक ये सीरीज पॉजिटिव है, क्योंकि उसके बाद ये सीरीज नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो जो इनफाइनाइट सीरीज का अगर कोई क्वेश्चन है भी, तो इस टाइप से सीरीज का क्वेश्चन बनेगा, ये बता रहा हूं मैं, क्योंकि अदरवाइज इनफाइनाइट लेकर जाएंगे तो वो -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा एपी का एप्लीकेशंस हैं इस टाइप से। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जीपी होता है, जिसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। So this is a series which is generated by multiplying fixed value to some fixed, some value to some fixed quantity. So let us say there is a term like a, first term, इसके अंदर भी मान लेते हैं हम a ले लेते हैं. If you multiply this term by some common value called r, so this becomes ar. Next, when you further multiply this upon r, it becomes ar square, it becomes ar cube, so on and so forth. You see in the first term r की पावर 0 है, तो nth term में r की पावर n-1 हो जाएगा. So first term मेरे पास हमेशा क्या बनता है, यहाँ पे a बनेगा, और nth term क्या बनेगा, a into r की पावर n-1. What is this r? R is known as common ratio. Why do we call it as a common ratio? Because if you divide two consecutive terms, you will get this R. Like let's say second term or third term मान लेते हैं, and second term divide करोगे तो AR square upon AR बनेगा, the common ratio is R. If you take second term by first term, let us say AR upon A, it will become R. So how do you identify whether a series is in GP or not? You once again take two pair of consecutive terms and find out the ratio. If the ratio is constant or consistent, then we can always say that this series is in geometric progression. समझ में आ रही बात? तो once again Tn टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, अगर हम इसमें प्लस कर दें तो ये मेरी सीरीज बन जाएगी. तो अब मुझे मान लेते हैं इसका सम निकालना है,
तो इसका जो सम बनता है अगर अन टर्म्स से लेके जाएं तो ये बनता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन. दिस इज सम ऑफ n टर्म्स व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. उसी तरीके से Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर when r is less than 1. And what of n becomes a into n if r is equal to 1. Say for example r is equal to 1 पुट कर देते हैं तो ये a हो जाएगा, n टर्म्स तक हो जाएगा. इसका समेशन क्या बन जाएगा? na. Of course it no longer exists as a geometric series because in GP you are continuously multiplying by some term. So in essence अगर हम r की वैल्यू 1 डाल दें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या अनडिफाइंड हो जाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज अ जीपी सीरीज, ये जो सीक्वेंस है वो अनडिफाइन हो जाएगी. राइट. अब इसके अंदर इनफाइनाइट आ सकता है कब? इसमें इन्फिनिटी सीरीज हो सकती है. देखिए आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, आर की वैल्यू n से बड़ी है, n तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो 1 2 3 4 होगा, माइनस टर्म्स तो हो नहीं सकती है, तो काउंटिंग है. तो अगर n r1 से बड़ा है तो इनफाइनाइट लेके जाओगे तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है. लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो जितनी बड़ी वैल्यू, जितनी पावर हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे वो दिन 0 होता जाएगा. मतलब अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो s इन्फिनिटी क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा जब r इज ग्रेटर देन 1. लेकिन जब r इज लेस देन 1 तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, मान लेते हैं s इन्फिनिटी बनेगा, वो बनेगा a इंटू 1 माइनस r की वैल्यू एग्जाम्पल के लिए 1/3 मान लेता हूं, 1 से कम, 1/3 1/4 1/2, होल की पावर कहां तक जा रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3. लॉजिकली यही बन रहा है क्योंकि हम n को हमने क्या किया? इन्फिनिटी कर दिया. अब अगर मैं 1/3 की पावर इन्फिनिटी की बात करूं, हमें पता है 1/3 की पावर 1 अगर हम लेते हैं तो 0.333 बनता है. ठीक है, 1/3 की पावर 2 लेते हैं तो 0.9 बनेगा, ऐसे बनेगा. 1/1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.4 होता है तो 25.03 समथिंग आएगा. यू सी द वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. तो जब ये बढ़ के इनफाइनाइटली चली जाएगी तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी. इसको हम लिमिट्स में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ. लिमिट 1/x will tend to 0 when x will tend to infinity. याद आ रहा है? ठीक है, अगर x बहुत बड़ा हो जाएगा तो फ्रैक्शन बहुत छोटी हो जाएगी. तो 1/3 की पावर इंफिनिटी करें या 1/3 होल की पावर इंफिनिटी करें, बात तो बराबर ही है. तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है मिलजुल के कहां पहुंच जाएगा? 0 पे पहुंच जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा? a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस, ये बेसिकली क्या है? 1/r है ना, 1 माइनस r है बेसिकली. तो ये बन जाएगा a/1 माइनस r. ये s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है. इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा? a/1 माइनस r when r is less than 1. ठीक है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 है. यहाँ पे r लेस देन 1 यानी मॉड्यूलस r लेस देन 1 बोल रहे हैं. r की हम पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं. ठीक है, ओके. उसी तरीके से जैसे हमने पिछली बार किया था कि अगर मेरे पास जीपी सीरीज हैं, मान लो मेरे पास 2 जीपी सीरीज हैं, अगर मैं दोनों जीपी को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और जीपी बनेगी जिसका कॉमन रेशियो विल बी द कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट जीपी एंड द सेकंड जीपी. उसी तरीके से इफ आई डिवाइड 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस देन यू विल वंस अगेन गेट अनदर जीपी, जब जिसका की जो रेशियो होगा वो पहले जीपी का r बाय सेकंड जीपी का r होएगा. ठीक है, जैसे उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सेम आ रहा था, वैसे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो नई जीपी बनेगी वो भी एक नई जीपी की सीरीज बनेगी. नाउ जिस तरीके से हमने
मान लो टर्म्स चूज करनी होती हैं एपी की, तो हमने एक सर्टेन टाइप्स ऑफ टर्म्स चूज करी थी। उसी तरीके से जब मुझे जीपी की टर्म्स चूज करनी होती हैं तो भी हम कुछ पर्टिकुलर टाइप से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ए आर क्यूब स्क्वायर चुन सकते हैं 3 टर्म्स, बट इट डजंट मेक मच ऑफ एन एडवांटेज. Why? Because there are 2 variables. So the way you choose 3 terms is a by r, a and ar. Why do you choose 3 terms like this? Because when you multiply these 3 terms, you see that r gets cancelled. So whenever you are choosing odd number of terms, let us say 3, 5, 7, you tend to choose a term in a fashion such that the common ratio is r. For example, ये 3 term है, मान लो मुझे 5 term choose करनी होती तो मैं a by r square, a by r, a आर स्क्वायर चूज करता। समझ में आ रहा है? इसमें जो कॉमन रेशियो है मेरा वो कितना है? आर। कॉमन रेशियो कितना है? आर। इसका फायदा ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को तो आर कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा ऑप्शन बचेगा वो सिंगल वेरिएबल में बचेगा। तो ये वाला हम कब चूज करते हैं? जब हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती हैं। उसी तरीके से जब हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती हैं तो हम क्या करते हैं? ए बाय आर, ए आर क्यूब समझ में आ रहा है? कॉमन रेशियो कितनी आ रही है? आर स्क्वायर। इस केस में कॉमन रेशियो आ रहा है मेरा आर स्क्वायर। अगर एक और चूज करना है तो ए बाय आर की पावर 5, यहाँ पे ए बाय ए इंटू आर की पावर 5, अगर 5 टर्म्स चूज करनी है तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं हमें चूज करना है ए बाय आर की पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा ए आर। वंस अगेन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो आर को कैंसिल कर देगा। सो इट मेक सेंस दैट आई चूज लाइक दिस। क्लियर है? देन उसी तरीके से जैसे हमने अर्थमेटिक मीन करा था, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वैसे ही हम एक चीज करते हैं जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो मान लेते हैं मेरे पास a b c d ये जीपी में है, तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या, 4 टर्म्स है ना, तो 4th रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करूंगा। समझ में आ रहा है? इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास a और b ज्योमेट्रिक सम टर्म है, इसके बीच में अगर मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये तीनों जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी 2 टर्म है उसके बीच में मैंने ज्योमेट्रिक मीन अगर डाल दिया तो जो टर्म्स है वो मेरी क्या हो जाएंगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। उसमें क्या अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ द n टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो अर्थमेटिक मीन देता है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म से हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आता है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी एपी है, एचपी, मान लेते हैं मेरे पास कोई चीज एपी है, जैसे कि ये एक एपी है, एपी मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा क्या प्रोग्रेशन है? एपी। तो जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है 1 बाई ए प्लस डी, 1 बाई ए प्लस 2d, सो ऑन टिल 1 बाई ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कहा 2 4 6 8 इज इन एपी, 2 4 6 8 एपी है या 10 एपी है। इसका रिवर्स कर दें 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 6, 1 बाई 8 एंड 1 बाई 10, ये क्या है मेरा? एचपी है।
अब मान लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं पहले उसको रिवर्स करता हूं, रिवर्स करके एपी बनाता हूं, एपी बनाने के बाद जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो करके फिर उसको वापस रिवर्स कर देता हूं ताकि एचपी में बन जाए. However, having said that, you cannot find sum of harmonic progression. कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का. जैसे कि मान लो 2 + 4 + 6 + 8 है, मान लो. ऐसा नहीं है कि मैं इसका सम निकाल के उसका उल्टा कर दूंगा तो वो मुझे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 का सम दे देगा. ऐसा कोई लॉजिक अवेलेबल हमारे पास नहीं है. सो फाइंडिंग आउट सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, as a formula, it is not possible and it is not available. However, you can find what you call as harmonic mean. For example, you have two terms A and B. इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एपी. रिवर्स करके एपी. फिर इसका क्या करूंगा, अर्थमेटिक मीन. और फिर इसका क्या करूंगा, रिवर्स. क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन. ये तो इफ यू सॉल्व दिस 2ab by a plus b बनेगा. ये आपको याद आ रहा है, कुछ है फॉर्मूला, किसका है, एवरेज स्पीड का. तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन 3 स्पीड्स. मान लेते हैं हमारे पास 3 टर्म्स होती, ए बी सी. इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या बनता, इसका पहले रिवर्स करते तो ये एपी बनता, फिर इसको ऐड करते और डिवाइड बाय 3 करते तो ये अर्थमेटिक मीन बनता, उसका रिवर्स करते तो हार्मोनिक मीन बनता. 3abc divided by ab plus bc plus ca. You remember this? We have done this while we were solving questions on एवरेज स्पीड. समझ में आ रहा है, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का जहां पे डिसकंटिन्यूटी है स्पीड में, वो मेरे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है. तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल of the arithmetic mean of the reciprocals of the given value. यानी जो गिवन वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, उसका अर्थमेटिक मीन जो आया फिर उसका रेसिप्रोकल. सो हाउ डू यू से इट इज द रेसिप्रोकल, उल्टा है किसका, ऑफ अर्थमेटिक मीन. लेकिन अर्थमेटिक मीन किसका, रेसिप्रोकल्स का. किसका, जो वैल्यूज गिवन है उसका. जो वैल्यूज गिवन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. उसको हम हार्मोनिक मीन के नाम से जानते हैं. आ रही है बात समझ में? अब सर, हाँ जी, ये जो अपने को टर्म्स दे रखी है ए और बी, ये नॉर्मल कोई भी नंबर हो सकता है. मतलब अगर ये 1/, और मतलब अगर ये 1/2, 1/3 हुए तो फिर इनको रिवर्स करना है, नहीं करना, करना है, तब भी करना है. वो उस वक्त टर्म 1/2, 1/3 है. अच्छा अच्छा. मान लो मैंने कहा 1/2 और 1/3 का हार्मोनिक मीन निकालो, तो वो तो फॉर्मूला तो यही बनेगा ना, 2ab by a plus b. तो वो क्या बन जाएगा, 2 × 1/2 × 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1/3. ab तो कोई भी जनरल पॉजिटिव टर्म है ना. और ये जो ए बी है ये एचएम में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होंगे. देखो दो टर्म्स के बारे में तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते हो, HM है, AM है, B है, वो तो कोई भी दो है. अब ए बी मान लो कोई भी 2 टर्म है, उसके बीच में अगर हमने एक हार्मोनिक मीन डाल दिया तो हम ये कह सकते हैं A और हार्मोनिक मीन और B HP में हो जाएगा. ठीक है सर. ठीक है. अब इन तीनों में जो रिलेशनशिप है वो ये है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा सर एक क्वेश्चन पूछना था. is greater than or equal to, geometric mean is always greater than or equal to harmonic mean. ये इक्वालिटी कहाँ पे आएगी, इक्वालिटी वहां पे आएगी जहां पे टर्म्स इक्वल हो गई. मान लेते हैं a is equal to b हो गया. फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक मीन है a plus b by 2 which is greater than geometric mean which is √ab which is greater than harmonic mean which is 2ab by a plus b. Now if a is equal to b, this will become 2a upon 2 which is greater than, and now in this case it will become equal to under root of a square would be once again equal to 2a square by 2a.
ठीक है, तो उस केस में ये देखो इक्वल टू आ रहा है सारा, ये खत्म हो जाए 2 से 2, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a। तो इक्वालिटी कहाँ आएगा? व्हेन द टर्म्स आर इक्वल देन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हाँ जी बोलो, अब क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि अगर कोई सीरीज दी हुई है, एचपी दिया हुआ है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज दी हुई है, और जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन पूछा था आर्यन ने पूछा था, जो जैसे 1/a 1/b करके कोई सीरीज दी हुई है, और उसमें हमें कह रहा है कि हमें एचएम निकालना है, एएम निकालना है उसी सीरीज का, और सीरीज एचपी में दिया हुआ है, तो हम नॉर्मली जब इसका एचएम कैलकुलेट करेंगे तो हम नॉर्मल डालेंगे 2ab अपॉन a प्लस b। देखो अब या तो तुम एक बात बोलो कि तुम्हें सीक्वेंस दी हुई है, उसका हाँ। हमें कुछ निकालना है। तुम कह रहे हो कि हमें जो सीक्वेंस है वो एचपी में दे रखी है, तो अगर एचपी में दे रखी है तो एचपी एचएम ही निकलेगा। तो हम उसको एपी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो हमें पता है सर, जैसे रेसिप्रोकल में होता है, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, हाँ हाँ कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछ नहीं, रहा है तो। लेकिन वही तो मैं समझा रहा हूँ, मीन तो निकल जाएगा, सम नहीं निकलेगा। एपी में तो निकल जाएगा सम सर, एपी में कन्वर्ट करके उसको, है ना? हाँ एपी का, एपी में कन्वर्ट होगा तो जो सम निकलेगा वो एपी का निकलेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है एचपी से फिर। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ ये चक्करों में मत रहना कि उसको एपी बना के सम निकाल के कुछ उल्ट पुल्ट कर लोगे, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। और देन and then we also have this relationship am into gm, am into hm is equal to gm square. So let us say arithmetic mean मेरे पास क्या है? a plus b by 2. Harmonic mean क्या है? 2ab by a plus b. So you see this 2 goes here, this 2 goes here, this ab goes here, this ab goes. You have ab which is nothing but root ab का whole square, which is nothing but geometric mean का whole square. तो ये दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, एंड अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इन तीनों के बीच में। सिर्फ 2 टर्म्स के लिए होता है, ज्यादा के लिए होता है? है ये सिर्फ 2 टर्म्स के लिए होता है, ज्यादा टर्म्स के लिए भी होता है? ये 2 टर्म्स के लिए। तो सर ये वाला रिलेशन तो वहां लेट अस चेक इट आउट फॉर 3 टर्म्स आल्सो, इट शुड बी वैलिड जनरली। मतलब मैं तो 2 के लिए चेक किया, मान लेते हैं उसमें क्या 3 टर्म लेके देख लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। तो क्या ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा? ये नहीं आएगा। सो दिस इज वैलिड फॉर 2 टर्म्स। ये तो सर वहां एग्जिस्ट करेगा ना जहाँ ए की सीरीज है, जो एपी भी है, जीपी भी है, और एच ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वहीं तो आएगा एक ही सीरीज के तीनों टर्म्स आएंगे, एएम जीएम एच। हाँ मतलब उसी टर्म्स को यूज करके बनाया गया हो, लेकिन उसी टर्म्स को भी अगर यूज करके बनाया तो मान लो एबीसी है, 3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स तो सेम है, उन्हीं का अर्थमेटिक मीन, उन्हीं का हार्मोनिक मीन और उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन हमने लिया। आ नहीं रहा ना, देखो यहाँ पे ये लिया ना अर्थ में। मान लो एबीसी है, कोई सीरीज है एबीसी, इसका अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा? ये, इसका हार्मोनिक मीन बनेगा ये, और ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा इसका? अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए बी। नाउ दे आर नॉट इक्वल, राइट? यस सर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब जब भी हमें सीरीज मिलेगी तो या तो हम एपी उसको चेक करेंगे एपी में है, या चेक करेंगे जीपी में है, या चेक करेंगे एचपी में है। बट you can also have a series which is something like this. For example, I have a series in AP I have a series A plus D, A plus 2D, A plus 3D, so on, A plus n minus 1 into D. Let's say I have a progression GP which says, let's say B, BR, BR square, BR cube, so on,
br की power n minus 1. So I may have a series which says AB a plus d into br, a plus 2d into br square, a plus 3d into br cube, so on, a plus n minus 1 into d multiplied by br की power n minus 1. Such a series is known as AGP, or we call it as a arithmetico-geometric progression. So it's a product of arithmetic series and geometric series. So you may be asked question, find the sum. Let us say I have 1 by 7 plus 2 by 7 square plus 3 by 7 cube plus 4 by 7 की power 4, so on till infinity, and I need to find out, let us say, sum of this series, right? So how do I really approach this question, whereby I can see it is simply the product of 1, 2, 3, 4 in one case, which is being multiplied by 1 by 7, 1 by 7 square, 1 by 7 cube. That means I can represent this series in this fashion: 1 into 1 by 7 plus 2 into 1 by 7 का square plus 3 into 1 by 7 का cube, which is same as what you call as AGP, जो अभी हमने ऊपर देखा है. So how do you approach such a kind of question? You approach this kind of question by what we call as a method difference. We apply something known as a method difference. So what is method difference? So method difference is, let us say this series is given to us. You multiply this series by what we call as common ratio. See, we need to first identify that it is a product of two series. So in this case, the geometric progression is 1 by 7, 1 by 7 square, 1 by 7 cube, so on and so forth. So what is the common ratio? 1 by 7 square divided by 1 by 7, क्या मिलेगा? 1 by 7 square divided by 1 by 7. A square divide by A कितना होता है? A. तो 1 by 7 का whole square divide by 1 by 7 कितना होगा? कॉमन रेशियो कितना है? 1 by 7. तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को 1 by 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये s है ना, इसको 1 by 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 1 by 7s लिख सकता हूं. यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 1 by 7 इंटू 1 by 7 कितना हो जाएगा? 1 by 7 स्क्वायर. लेकिन मैं इसके नीचे नहीं लिखना चाहता, मैं इसको टैब लगा के, कंप्यूटर वाला टैब लगा के यहाँ लिखना चाहता हूँ. समझ में आ रही बात? टैब का मतलब क्या होता है? पूरा सिस्टम एक यूनिट शिफ्ट हो जाता है. ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? 2 by 7 क्यूब. उसको मैं इसके नीचे लिखना चाहता हूं, 2 by 7 क्यूब. ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? 3 by 7 की पावर 4. ये वाली क्या वैल्यू बनेगी? 4 by 7 की पावर 5. ऐसे बनता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा. इंफिनिटी वैल्यू एक हिला भी दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? वो भी इंफिनिटी में ही सिमट जाएगा. समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया. उसके बाद मैं क्या करता हूं, माइनस. क्या मेथड है हमारा? अब मैं करूंगा s माइनस 1 by 7s इज इक्वल टू, ये माइनस करूंगा तो 1 by 7 का 1 by 7 आ जाएगा. 2 by 7 स्क्वायर माइनस 1 by 7 स्क्वायर कितना आएगा? हैं? ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा. समझ में आ रहा है? कहां से आया? यहां से नहीं आया, ऊपर. यहां कुछ भी नहीं है, 0 है. 1 by 7 माइनस 0. अब यहां पे 2 by 7 का स्क्वायर माइनस 1 by 7 का स्क्वायर. एलसीएम लेंगे 7 का स्क्वायर. 2 minus 1 कितना बनेगा? 1 by 7 स्क्वायर. वो मैंने इसके नीचे लिख दिया. ये 3 by 7 क्यूब माइनस 2 by 7 क्यूब क्या बनेगा? 1 by 7 क्यूब. 4 by 7 की पावर 4 माइनस 3 by 7 की पावर 4 क्या बनेगा? 1 by 7 की पावर 4. आ रही है बात समझ में? LHS में हो गया 1 minus 1 by 7, यानी कि 6 by 7s is equal to. Can I say this is GP of infinite nature? S infinity is defined as a by 1 minus r. याद है? यहां पे a की वैल्यू क्या है?
1 और r की वैल्यू क्या है, वो भी 1/7 ही है, तो बन जाएगा 1/7 अपॉन 6/7, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/6। क्या निकला अभी तक हमसे निकला 6/7 s की वैल्यू है 1/6। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 7/, ये आपका आंसर है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा एजीपी बोलते हैं इसको, मेथड डिफरेंस से हम इसको कर सकते हैं। एजीपी के तो ऐसे ही बनेंगे, उसमें तो एपी कुछ भी सीरीज होगी, जीपी कुछ भी सीरीज हो, प्रोसेस यही होगा। पहले जीपी आइडेंटिफाई कर लो, सारे ऐसे होंगे। अगर वो एजीपी है तो कोई भी एजीपी बना के दे दो मेरे को, आपको लगता है ये एपी है, ये जीपी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर निकाल के देख लेते हैं। ऑल एजीपी कैन बी सॉल्व लाइक दिस, ऑल। जो तुम बोल रहे हो वो रैंडम सीरीज होती है जिसमें जो एजीपी नहीं बन रही है। वो इंक्रीजिंग एजीपी हो सकती है, मैं बताता हूं। तुम अगर एजीपी है ना तो ऐसे पक्का सॉल्व होएगी, कोई डाउट ही नहीं है, 100% सॉल्व होएगी। अब मान लेते हैं ये सीरीज है, मान लेते हैं सीरीज मिल गई हमें। मान लेते हैं ये सीरीज है, ऐसा कुछ बोल रहे हो। अब क्या ये, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये एजीपी है? ये एजीपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एपी नहीं है, लेकिन कुछ और एपी है इसका। वेरी गुड। अब देखो, अगर ऊपर वाले की टर्म्स का डिफरेंस निकाल दें तो वो एपी है। समझ में आ रही बात? इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं इंक्रीजिंग एजीपी। इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एजीपी। कैसे होएगा इंक्रीजिंग एजीपी? इसमें भी मेथड डिफरेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन रेशियो 1/7, इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 स्क्वायर बनेगा। ये वाली टर्म क्या बनेगी? 2/7 क्यूब बनेगी। ये क्या बनेगा? 4/7 की पावर 4 बनेगा। ये क्या बनेगा? 7/7 की पावर 5 बनेगा। और ये क्या बनेगा? 11/7 की पावर 6 बनेगा। ऐसे इंफिनिटी बनेगा। इसका डिफरेंस निकालोगे 6/7s बनेगा, 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 2/7 क्यूब प्लस 3/7 की पावर 4 प्लस 4/7 की पावर 5 प्लस 5/7 की पावर 6। क्या मतलब है इसका? अब ये जो सीरीज है वो क्या बन गई मेरी? अब एजीपी बन गई। अब फिर मेथड डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं वापस इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 6/49s। ये क्या बनेगा? 1/7 स्क्वायर। और ये क्या बनेगा? 1/7 क्यूब। ये क्या बनेगा? 2/7 की पावर 4। ये क्या बनेगा? 3/7 की पावर 5। ये क्या बनेगा? 4/7 की पावर 6, सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब माइनस करूंगा तो 6/7s माइनस 6/49s इज इक्वल टू 1/7 प्लस 7 स्क्वायर खत्म हो गया, 1/7 क्यूब प्लस 1/7 की पावर 4 प्लस 1/7 की पावर 5, सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब या तो तुम इसको यहां से शुरू कर लो, यहाँ पे 1/7 स्क्वायर मिसिंग है। मान लो मैंने 1/7 स्क्वायर डाल दिया इजी करने के लिए, तो इधर भी 1/7 स्क्वायर ऐड कर दूं तो चल जाएगा।
LHS और RHS में ऐड कर दिया। अब RHS क्या बन गया मेरे पास, ए इंफिनिटी a by 1 minus r, 1/7 upon 1 minus 1/7, तो RHS बन गया 1/6। LHS क्या बन गया, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 7 6 42s डिवाइडेड बाय 49 माइनस 6s डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1/49 इज इक्वल टू 1/6। तो ये 42 में से 6 गया, कितना बनेगा है 6 है ना, हाँ 36, तो यहीं कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 36s by 49 is equal to 1/6 minus 1/49. So this implies s is equal to 49 divided by 36 into 1/6 minus 1/49. सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 49/216 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा 1/36, ये बनेगा। इंटू 6 कर दूं, नीचे भी 6 कर दूं तो 216 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, और ऊपर आ जाएगा 49 माइनस 6 43, ये हो गया एस। तो एस की वैल्यू आ गई 49/216, ये आंसर है आपका। आता है सर, है ये वाले क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग एज, ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं तुमको। आंसर भी यही था 49/216। एक बार स्टार्टिंग से दिखाना। अच्छा अब दिखाऊं? कुछ नहीं, 2 बार डिफरेंस लगाना पड़ गया अपन को। नहीं सर, वो क्वेश्चन सर इसके अंदर ये रहा। सर बोलो, हाँ बोलो बोलो। इसके अंदर डिजिट सर इन्फिनिटी तक ही होंगे हमेशा? आर तक होंगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो सकती हैं, क्या पता दे दे। तो सर उसके अंदर फिर ये मेथड डिफरेंशिएशन लग सकता है फिर ये? लगेगा, सिर्फ तुम्हें जीपी जो है ना, वहां जीपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बस। यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी लग रही है, वहां पे a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1, वो निकालना पड़ेगा। तो सर लास्ट में जो अगर कोई जैसे स्टार्टिंग में एक गैप छोड़ देते हैं तो वो टर्म लास्ट में जाएगी? बिल्कुल जाएगी, तो एक टर्म बढ़ जाएगी, यस वो सर। ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। वही मान लो n टर्म्स है, तो बाद में जब तुम माइनस करोगे तो जो नई सीरीज बनेगी वो कितनी टर्म्स की बनेगी, n+1 टर्म्स की बनेगी, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उसके अंदर nth टर्म के फॉर्मूले में। ठीक है, यस ये हो गया इंक्रीजिंग एजीपी। वही तो, इनफाइनाइट नहीं दे रखा तो ये अल्टीमेटली जब माइनस करोगे तो ये जीपी बनेगा, माइनस करने का मतलब है जीपी बने। अब जो जीपी बनेगा उसमें एन टर्म्स तक का सम लगेगा। बस ये ध्यान रखना है कि मान लो पहले शुरू में हमारी एन टर्म्स थी, तो जब तुमने टैब लगा के माइनस किया तो आखिरी वाली टर्म बढ़ जाएगी, मतलब जो फर्स्ट वाली 0 हो जाए, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n+1 हो जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1, वहां पे n का ध्यान रखना है आपको, बढ़ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस होएगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम मेथड है। ठीक है, नाउ दी सीरीज जो हमने अभी देखा है, दे आर स्टैंडर्ड सीरीज। सो व्हेनेवर यू चेक, you start by checking whether it is a AP, it is a GP, or it is an HP, or it is increasing AGP, and so on and so forth. However, some of the series are neither. It is not necessarily then any of the series would follow this kind of pattern. Now, so what happens in that scenario? How do we handle? Of course, there are certain standard series जिसका sum हमें आना चाहिए। मान लो मेरे पास एक सम है, इसको 1 + 2 + 3 + 4 + so on till n बोलते हैं।
इसको बोला जाता है समेशन एन। समेशन एन जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एन तक। मतलब क्या है, एन की वैल्यू 1 डालो पहला टर्म आएगा, एन की वैल्यू 2 डालो दूसरा टर्म आएगा, एन तक डालोगे तो आ जाएगा। समेशन एन इज गिवन एज एन इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ एन टर्म्स हम जिसको बोलते हैं। उसी तरीके से समेशन एन स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा नहीं है, एन इज इक्वल टू 1 से लेके मान लो 5 होता, इसका क्या मतलब है, कहां तक जा रहा है ये 5 स्क्वायर तक जा रहा है। 6 तक होता तो 6 तक, टी तक होता तो टी तक, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब कहां तक जा रहा है ये एन तक, बस इसका इतना ही मतलब है। तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑनटिल एन स्क्वायर, जिसका की फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। This is the formula of summation of n square. ऐसे ही there is a formula for summation of n cube, which is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on till n cube, which is n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। यानी जो नॉर्मल इसका था इसका स्क्वायर कर दोगे तो सम ऑफ द क्यूब की टर्मिनोलॉजी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। नाउ बट अ सीरीज मे बी जनरेटेड बाय यूजिंग एनी लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, आई मे जनरेट अ सीरीज, लेट अस से मान लेते हैं मैंने पहली टर्म ले ली 3, ठीक है, तो दूसरी ले ली 11, ठीक है, नहीं रुको, 1 फिर मान लो मैंने ले ली 27, 36, 37, फिर मान लो मैंने ले ली, ऐसे मैंने ले ली। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइंड द nth टर्म एंड फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टिल लेट अस से 5 टर्म्स और 10 टर्म्स मान लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि 10 टर्म्स तक है, तो ये बोला जा सकता है इसका सम निकालो, या ये भी बोला जा सकता है कि nth टर्म निकालो। नाउ देयर इज नो वे रियली यू कैन फिगर दिस आउट nth टर्म। Now, the series that I've tried to generate as Tn is 1 plus n plus n square. Let us say this is the term. Right. So if you replace n by 1, you'll get 3. You replace 2, so 2 plus 4. अच्छा मैंने गलत कर दिया. 2 plus 4, 6 and 1, 7. 3 कर देंगे तो 27 plus 20. अच्छा मैंने n स्क्वायर और n क्यूब ले लिया था, सॉरी, यहाँ क्या था, ये सीरीज मैं पहले ये बना रहा था तो 13 था, ये बन जाएगा। 2 पुट करा तो 8 plus 4 12 and 1 13, 3 पुट किया तो 27 plus 9 plus 1 37, 4 पुट, यानी जो मैंने सीरीज बनाई वो क्या बनाई, 1 plus n स्क्वायर plus n क्यूब, और 1 2 3 डाल के मैंने टर्म्स बना दिए। समझ में आ रही बात? मान लो मैंने tn यानी tn डिफाइन कर दिया 1 plus n स्क्वायर plus n क्यूब, राइट। नाउ आप कुछ भी सोच सकते हो अपने दिमाग में, आप सोच सकते हो 3 plus 2n plus 5 क्यूब या 5n की पावर 3, ऐसा कोई भी टर्म बना सकते हैं, दुनिया में कुछ भी बन जाएगा। और एग्जामिनर ने ऐसे में सीरीज बना के दे दी है, तो अब हम फंस जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि हम या तो वही सोच पाए जो एग्जामिनर सोच रहा है, या तो कुछ स्टैंडर्ड सी बातें होती हैं, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो कि भाई प्लस करके बना दिया, माइनस करके बना दिया, +3 कर दिया, इनटू समथिंग कर दिया, बट इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो देयर आर 2 पॉसिबल क्वेश्चंस। If something very drastic like this is formed, then the question will always be given in terms of options. Which of the following given options is nth term? So what is the best way of doing such a kind of question?
is to go by option. Whenever you find any series का question which is having options given in n, don't do anything, don't think even, go by options. For example, there will be 3-4 options in terms of n. When you put n is equal to 1 in the given 4 options, chances are all 4 options will give you 3. Chances are all 4 options will give you 3. So when you put n is equal to 2, chances are out of 4 given options, 3 options will give you answer as 13. Let's say you put answer as 3 or 4, then maybe you will come down to 1 answer. So the best way of handling such a scenario, such a question, is substitute n is equal to 1, 2, 3, 4 and see which option matches the series when you substitute n is equal to 1, 2, 3. अगर nth टर्म का क्वेश्चन आता है तो उसी तरीके से मान लेते हैं उसने कहा कि इस सीरीज का सम बता दो, n टर्म्स तक का सम बता दो, तो जो मेरा ऑप्शन में होगा वो कैसा ऑप्शन होगा? जो आंसर वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n into n plus 1 by 2 का whole square. Certainly this will be one of the option because the answer to this question is this. See, what is summation Tn? Summation Tn means Sn. What is summation Tn? Summation Tn का essence क्या है? Summation Tn का मतलब है T1 plus T2 plus T3 so on till n terms, जिसको कि हम Sn बोलते हैं. समझ में आ रहा है? जनरल टर्म पे समेशन लगा दिया. अब जो मेरा Tnth टर्म है, मान लो ये मेरी सीरीज थी. सीरीज क्या थी मेरे पास? 3, 13, 37 ये सीरीज थी, जिसका मैंने जनरल टर्म क्या निकाल लिया? मान लो जनरल टर्म निकाल लिया, तो इसका सम निकालने के लिए समेशन करना पड़ेगा. तो समेशन Tn, यहाँ पे समेशन Tn का मतलब हो गया समेशन ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब. इसका मतलब है इसको कर सकते हैं समेशन n प्लस समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n क्यूब. समेशन n का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर किया था n इंटू n प्लस 1 बाई 2. समेशन n स्क्वायर, समेशन 1 है, सॉरी समेशन 1 है. समेशन 1 का क्या मतलब है? इसका आंसर क्या होगा? समेशन 1 का आंसर n, क्योंकि समेशन 1 का मतलब है 1 इज बीइंग एडेड हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, बिकॉज व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड n इज मूविंग फ्रॉम 1 से लेके n तक. तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट n आ जाएगा. समेशन n स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. और समेशन n क्यूब क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल. आ रही बात समझ में? अब इसमें से जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, मान लेते हैं ये ऑप्शन होता है, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 3. n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 16. यही समझाना है बस मुझे. n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? सम ऑफ 2 टर्म्स. समझ में आ रहा है? समेशन पूछ रहा है ना, ये रिजल्ट किसका है? समेशन का. n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? सम ऑफ 2 टर्म्स. यानी जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 प्लस 13 का आंसर आना चाहिए. n इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? 3 प्लस 13 प्लस 37 कितना बनेगा? 53. बस ये समझा रहा हूं मैं. अगर वो nth टर्म पूछ रहा है ऑप्शन में तो n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड टर्म, n इज इक्वल टू 5 यानी फिफ्थ टर्म. लेकिन अगर वो समेशन पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू 5 जब रिजल्ट में पुट करोगे यानी वो 5 टर्म्स का सम आना चाहिए. चेकिंग करने का मेथड बता रहा हूं मैं. आ रही बात समझ में? तो इसी तरीके से जब हमें इस टाइप की अननोन टाइप की सीरीज मिलती है तो हम इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं. ये बात समझ में आती है ना? समस्या हमारे साथ तब आ जाती है जब डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं. जैसे कि मान लो हमने इससे पूछा सम निकालना है 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 so on, let us say 1 by 99 into 100. इसका बोला सम निकाल दो भाई. Now this really does not fall in the any category of finding out nth term, AP, GP, geometric and so on and so forth. So whenever you have something like something in product given in the denominator, you have to try to convert into some sort of sum or difference.
For example, this can be written as half, which is basically 1 minus 1 by 2. If you look at this value, it can be written as 1 minus 1 by 2. This can be written as 1 by 2 minus 1 by 3. बीच में प्लस है, समझ में आ रहा है? What 1 by this can be written as 1 by 3 minus 1 by 4 and so on. This can be written as, उसके पहले क्या हो जाएगा? 1 by 98 minus 1 by 99. This value could be written as 1 by 99 minus 1. ऐसा लिखा जा सकता है, यही होगा. अब इसका सम निकालना. If you see, this is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 so on. कहां तक जाएगा ये? Plus 1 by 98 minus 1 by 99 plus 1 by 99 minus 1 by 100. क्या नहीं से सारी टर्म्स कटेंगी? कौन सी बचेगी? 1 minus 1 by 100, which is that is one way of handling this question, right? So it is pretty much close to 99% 100 value, right? Now, sometimes, I mean, it is not easy for us to really split this term. Sometimes there are 3 terms in the denominator, but we'll have to figure out a way of splitting such that it be sum or minus. More or less, eventually the question would be solved like this कि उसको sum या minus में split कर पाएंगे. कुछ कुछ कटेगा पहला आखिरी या कुछ टर्म्स बचेगा और हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा. Now, even let's say sometime there is a scenario that it is not possible for us to break something like this. What do we do in that case? You go by some options and averaging techniques. That is only possible when the options are far, right? And it's not a theta question. Theta question as in अगर टाइप ही करना पड़ गया तो हमें तो पता नहीं क्योंकि हम अंदाजा लगा रहे हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी ये, अगर हम यही क्वेश्चन करना पड़ जाए और हमें ये सब नहीं आ रहा है तो हो सकता है हम इसको परसेंटेज की टर्म्स में फिजिकली ऐड कर लें. जैसे कि 1/2 हो गया 50%, या 0.5 करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, परसेंटेज में ले लेते हैं. 1/6 हो गया 16.66, 1/12 8.33. ये कितना बनेगा? 1/20 5%. ठीक है, 5 6 अगला आएगा 5 into 30. 1/30 is 3.33 अप्रोक्सीमेटली. फिर आ जाएगा 1/42, 6 7 42. 42 मतलब 50 होता तो 2% आता, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा 2.2. 7 8 56. 56 का मतलब है 2% से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.9 टाइप्स में. 56 के बाद कितना बना था? 8 into 72. 72 बनेगा मेरे पास, कितना बनेगा? 100/72 1.2 के आसपास. उसके बाद 9 into 10 90. 1/90 करीब 1.1 के आसपास. फिर 10 into 11 110, यानी कि 1% से कम आ जाएगा 0.9 के आसपास. और अभी हम 8-10 वैल्यूज पे पहुंचे हैं. लेकिन अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू है वो डेसिमल में चली गई है. अब इसको मोटा मोटा गिन लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 46 और एक ये मिला के 47, इनको मिला के 47 और 8 47 और 8 55 और 5 60, 60 और 3 63, 2 65, 66 67 68 एंड दिस विल बिकम 69 70 के आसपास पहुंच रहा है मोटा मोटा. एंड maybe another 10. I would make a guess of 80 और आंसर है 99. So if we have that kind of margin only then we can take, otherwise maybe, क्योंकि 10-15 वैल्यूज तो 0.999 ही आ जाएंगी, तो 10 एक तो बढ़ ही जाएगा. उसके बाद पता नहीं कितनी बढ़ रही है वैल्यू. ठीक है, क्योंकि 1/100 is 0.01 जा रहा है आखिरी में, तो 70-75% के पास अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं मार्क कर देता. तो अगर इतना गैप है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर इन ट्रबल. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये तब है जब कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, क्या करें? कुछ तो अंदाजा लगाएं, तो ये लगा सकते हैं हम.
Okay, do you have books now? किताबें लाए हो? Just go through these examples quickly. सर ये इंक्रीजिंग जीपी वाले का आंसर क्या आया था? इसका इंक्रीजिंग जीपी एजीपी जो करा था उसका। ये था 49 में 216 43 होगा ना सर इसका? 40, हाँ हाँ 43 से 43 होगा। मतलब ये अच्छा यहाँ 49 किया था ना मैंने, ये डब्बा गलत बना दिया, रुको। मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसमें से माइनस कर दिया। तो 49 कहाँ से आया था ये? मैं ये था ना 1/6 माइनस 1/, तो 1/49 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई किया तो 36 इंटू 6 216। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ये एलसीएम लेना। -1/49 ये कहाँ से आया था सर? ये यहाँ पे हमने ये ऐड किया था ना, 7 स्क्वायर कम था ना, जब यहाँ माइनस किया था तो 7 स्क्वायर खत्म हो गया था, तो ये 1/7 था, ये था, तो 1/7 स्क्वायर हमने इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड किया एलएचएस और आरएचएस में। इधर ये एडिशन किया था ना इधर, तो इधर भी ऐड किया। ठीक है। इधर क्यों किया? ताकि ये सीरीज बन जाए। और इधर क्यों किया? ताकि सीरीज बनाने के लिए इधर करेंगे तो इधर करना पड़ेगा, इसलिए किया। ठीक है।